Thank you. Good afternoon, everyone. Yesterday, we discussed some of the aspects of personal selling, how the personal selling is different from the advertising, how it helps different manufacturers and sellers to reach to their customers, how there you can meet your prospective customers personally and persuade them to purchase your product. It also includes the before sale and after sale services. So the salesmanship is not only about making the sales, but they have many other tasks as well. Like we discussed yesterday that they have to do a research to know the market potential. They have to decide upon the territory, the cost estimation, then they have to communicate to the people, they have to answer their queries and give the after sale services as well. So there are lots of things that have to be done by the salesman. Today we will discuss the qualities of good salesman, because salesmanship is an important part of overall promotion mix, and the salesman is an important element of whole process of salesmanship. So salesman आपका मेन क्रक्स होता है कि किस तरीके से आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, because he is going to be your representative. It is there with him whether he would ask people, whether he would convince people to purchase your product or not, whether he would be able to make sales or not, whether he would be able to make you reach to your goal. So that is why there are a lot of qualities which are required in a good salesman, and today we are going to discuss all those qualities. The first quality that is needed in the good salesman is ambitious. They have to be ambitious. You want someone who wants to grow in this position. That means they should be enthusiastic about the future. They should be ambitious. They should have an aim to reach. They should not be a kind of employee who are just working for the organization. They should work for themselves as well. So that is why they should strive for the new opportunities and new milestones. Ask what they see themselves doing in 1 year, 3 years and 5 years. What does it look like? So you just, if you want to know that whether your sales people are ambitious or not, you can ask them a few questions like where they see themselves after 1 year of the service, or after 3 years or 5 years of the service. So they should be optimistic about the future, and they should be looking ahead for the growth. The first quality is ambitious. Now let's talk about the second quality, that is passionate. Passion sells, clients can feel it, and you want your team members to genuinely believe in what they are selling. So you should be passionate about your services, your job, because it would be clearly visible to the client whether you are passionate about it or not. Because if you genuinely believe in the product that is being sold, अगर मैं खुद ही satisfy नहीं होंगी, suppose I want to sell this mobile phone to you, अब मैं खुद ही इस फोन से खुश नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे कन्विंस कर पाऊंगी? इसीलिए सबसे पहले दूसरे को कन्विंस करने से पहले आपको खुद कन्विंस होना जरूरी है. अगर आप कन्विंस होंगे तो आप पैशनेट होंगे, और उतने ही एंथुजियाज्म के साथ आप उस प्रोडक्ट को बेचेंगे. और
क्लाइंट को भी पता चलेगा कि आप उसके लिए पैशनेट है या नहीं। एक तो मैं आपको बहुत बढ़ चढ़ के इसके फायदे बताऊं, नुकसान बताऊं, या फिर मुझे के Am I audible? अच्छा ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। वी वर डिस्कसिंग अपॉन द सेकंड पॉइंट दैट यू शुड बी पैशनेट। आप कोई भी चीज के लिए कन्विंस होने चाहिए, खुद उस प्रोडक्ट से होने चाहिए, और जब ही आप किसी और को उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोल्ड। Find a salesperson who is not afraid to make the call, hit the C-suite or get on the stage. यानी एक सेल्स पर्सन एक वोकल पर्सन होना चाहिए। इसे शायद नहीं होना चाहिए कि
बोलना नहीं and what to विकास जी अब आवाज आ रही है?
ठीक है, थैंक यू. लेट मी शेयर अगेन. हाँ जी. So, fifth quality of a salesperson is to be assertive. यानी आपको हर चीज में हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, कभी कभी अपने पॉइंट्स भी रखने हैं. अगर कस्टमर आपको कहता है, सपोज आप वॉशिंग मशीन बेचने गए हैं और कस्टमर आपको कहता है कि वॉशिंग मशीन में अच्छे से कपड़े नहीं धुलते हैं, तो आपको हाँ में हाँ नहीं मिलानी है. आपको उन्हें बताना है कि कुछ मशीन्स हैं जिसमें नहीं धुलते हैं लेकिन हमारे प्रोडक्ट में अच्छे से धुलते हैं. डेमो देकर बताना है. दैट इज एसर्टिवनेस. एरोगेंट नहीं होना है, एसर्टिव होना है. नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट. यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ. जो भी आप कह रहे हैं, पहले आप खुद कन्विंस होंगे, जब भी दूसरे को कन्विंस करेंगे. एट द सेम टाइम यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप जो कह रहे हैं वो पूरे तथ्यों के साथ कह रहे हैं, आपके पास उसका पूरा एविडेंस है, ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे हैं. यू शुड बी कॉन्फिडेंट. नेक्स्ट है मोटिवेटेड. यू कैन फॉरगेट अबाउट रीचिंग द कोटा विदाउट दिस. मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है. आस्क व्हाट इज योर व्हाई. Do they enjoy fulfilling clients' need by helping them find the right solution? Do they thrive of taking to the people and building relationship? यानी वो मोटिवेटेड है काम के प्रति या नहीं है. क्या वो यह काम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा है. सेल्स पर्सन की बात कर रही है. सपोज मैं मैनेजर हूँ और बहुत सारे सेल्स पर्सन मेरे अंडर काम कर रहे हैं, तो क्या वो काम सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं या खुद भी उसके लिए मोटिवेटेड है? क्या वो और बढ़ चढ़कर काम करना चाहते हैं? क्या अपने कोटा, जो कोटा आपने दिया है, कोटा क्या होता है कि जैसे आज आपको 5 सेल करनी है या 10 सेल्स करनी है, तो क्या वो कोटे से भी ज्यादा करने को तैयार है? अगर वो तैयार है तो यानी वो मोटिवेटेड है. नेक्स्ट है ड्रिवन. This is what puts motivation into action. After asking them what is their why, ask them what they did once they determined their purpose. What pushed them to the action. यानी ऐसी कौन सी चीज है जो उनको काम करने के लिए मोटिवेट करती है, यानी क्या चीज है जो उनको ड्राइव करती है. किसी किसी के लिए ज्यादा पैसा होता है, किसी के लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, किसी के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज होती है. सो व्हाट इज दैट थिंग दैट ड्राइव्स यू. एंड द लास्ट क्वालिटी इज competitive. Competition is what drives people to greatness. Tell them the top performance. यानी क्वालिटी एक ये भी होनी चाहिए कि आई एम रेडी टू compete. मेरे साथ के लोगों को कितना कोटा दिया गया है और वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं. मेरे अंदर एक ये भावना होनी चाहिए कि मुझे उनसे compete करना है और उनसे बेहतर बनना है. तो competitiveness हमेशा गलत नहीं होती. हाँ, ज्यादा आपको दूसरे से ये कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसने इतना किया है या मैंने इतना किया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कंपैरिजन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए जिससे आप बेहतर कर सकें. तो competitiveness should be there in the sales person. तो आपको मैंने 9 क्वालिटीज बताई हैं. इन 9 क्वालिटीज में से अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं. क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में लिखिए अपने क्वेश्चन. क्वालिटीज में से any quality that I need to repeat again.
टेनेशियस का मतलब है कि आपने अगर कोई उनको तथ्य बताया है तो सीधा सीधा आपको ना नहीं करना है, उनकी बात सुन के अपना पॉइंट रखना है। सपोज आपने मुझे वॉशिंग मशीन के लिए कहा कि ये अच्छा नहीं धोती है, तो मुझे पहले आपकी बात सुननी है। अगर मैं सुनूंगी नहीं तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो पहले मैं आपकी बात सुनूंगी, नो आंसर नहीं दूंगी, मैं कहूंगी हाँ आप ठीक कह रहे हैं, पहले ऐसा होता था लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू बी टेनेशियस, यानी अपनी बात कहो, अपनी बात से डगमगाओ मत, लेकिन दूसरे की बात सुनकर कहो। ड्रिवन यानी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको उस जॉब के प्रति ड्राइव करती है, जैसे कि ज्यादा पैसा या ज्यादा अपॉर्चुनिटीज या फ्लेक्सिबिलिटी, कोई ऐसी चीज जो आपको उस जॉब के प्रति खींचती है। अब बाकी सारे पॉइंट्स, मुझे लग रहा है शायद सारे ही पॉइंट्स में डाउट है, कोई बच्चा कोई पॉइंट पूछ रहा है। एक बार मैं ब्रीफ दे देती हूँ सारे पॉइंट्स का। टेनेशियस और एसर्टिव में डिफरेंस है बेटा। टेनेशियस का मतलब है दूसरे की बात सुन के अपनी रखो, और एसर्टिव का मतलब है कि हर चीज में हाँ हाँ मत मिलाओ। सारे पॉइंट्स एक बार दोबारा बता रही हूँ। एम्बिशियस यानी आपके अंदर कोई ऐसा एम होना चाहिए जो आप अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में। पैशनेट यानी आपको अपना काम पसंद आना चाहिए, आप पैशनेट होने चाहिए अपने काम के लिए। बोल्ड यानी आप शाय नहीं होने चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए और आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। टेनेशियस यानी आपको अपनी बात रखनी है, दूसरे की बात सुनकर उनका माइंड चेंज करना है। एसर्टिव यानी आपको दूसरे की बात में हाँ हाँ नहीं मिलानी है, अपने पॉइंट्स को रखना है। सिक्स्थ, कॉन्फिडेंट यानी आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में जब बता रहे हैं तो आपका फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर चीज में जो आप बोल रहे हैं। मोटिवेटेड, आप अपने काम के प्रति मोटिवेटेड होने चाहिए कि आपको ये काम और अच्छा आगे फ्यूचर में करना है। क्यों कर रहे हैं उसका आंसर पता होना चाहिए कि ये आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मोटिवेटेड होने चाहिए आप। ड्रिवन, ड्रिवन का मतलब है कि आप में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको काम करने के लिए जुझारू करती है, आपको हर डेली उसी काम के लिए और ज्यादा बढ़ाने के लिए उस काम को यू नो इट हेल्प्स यू, इट गिव्स यू किक। अब मैं उसको हिंदी में क्या बताऊं कि कोई ऐसी चीज हो जो आपको किक देती हो उस काम को करने के लिए। और कंपेटिटिव यानी आप में थोड़ी सी कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि बाकी के सेल्समैन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और आप कैसा कर रहे हैं, ताकि आप बेहतर कर सकें। अब मैंने आपको दोबारा सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, किसी को दोबारा डाउट है तो बताओ।
मैं आज की क्लास आपकी 2:30 पे क्लोज कर दूंगी बिकॉज आई हैव माई अनदर क्लास फ्रॉम 3 to 4। तो आपकी क्लास आज 2:30 पे खत्म हो जाएगी। एनी क्वेश्चन? क्या आवाज ठीक से? लेट मी एडजस्ट माई माइक। अब हमने इस स्लाइड में कुछ इनर ट्रेड्स दिए हैं, जो कुछ इनर ट्रेड्स होने चाहिए एक एथिकल सेल्स पर्सन में। क्वालिटीज का ये एक्सटेंशन है। फर्स्ट इज कोर्टियस। कोर्टियस होना चाहिए। This one gives you insights into their personality traits. See if they thank you right after the, यानी ये courteous आया courtesy से। courtesy का क्या मतलब है? जब आपके लिए कोई काम कुछ अच्छा काम करता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, इतनी तो कर्टसी बनती है। या आपके घर कोई आया है तो आप उससे कोई चीज पूछते हैं, आप उनसे पानी पूछते हैं, कोल्ड ड्रिंक पूछते हैं, तो वो कर्टसी होती है। तो जो एक सेल्स पर्सन है वो कर्टियस होना चाहिए, यानी कि आप देखिए कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान दे रहे हैं या फिर उनको वैसे भी वो वेल मैनर्ड हैं, तो वो मैनर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। यू वांट पीपल यू कैन ट्रस्ट विद योर फर्म एंड योर क्लाइंट्स, यानी आपके जो सेल्स पर्सन है वो ऑनेस्ट होने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कुछ पॉइंट्स में वो क्लाइंट्स को अंधेरे में रख रहे हैं, कुछ में वो टॉप मैनेजमेंट को अंधेरे में रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। दे शुड बी ऑनेस्ट इनफ। नेक्स्ट इज हेल्पफुल। दिस हेल्प्स यू अनकवर देयर कस्टमर सर्विस स्किल्स। Ask what they did the last time one of their clients had a challenge with their product or service. This answer will shed light on how they manage customer needs and if they will be successful at overcoming challenges and building the lasting relationship. यानी वो हेल्पफुल होने चाहिए। सपोज मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो सेल्स पर्सन उनको हेल्प करे, और सिर्फ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही हेल्प नहीं करनी, अगर वैसे भी कोई क्वेरी आ रही है तो उसमें भी कस्टमर की हेल्प करनी आनी चाहिए। Next है humble. Egomaniacs can destroy a sales team and karma usually has a way of catching up with them. यानी ईगो नहीं होना चाहिए उनमें। सपोज मैंने आपको कहा, अब सेल्स मैन जो आते हैं शायद हम भी उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत पोलाइट होते हैं। कितनी बार हम उनकी कॉल्स नहीं उठाते हैं, कितनी बार हम दरवाज़ा बहुत लेट खोलते हैं, लेकिन उनमें ईगो नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी हम्बल एंड देन ओनली दे कैन मेक अ सेल्स। नेक्स्ट, दे शुड बी हेल्दी। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट देयर फिजिकल हेल्थ बट द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो वो स्ट्रेस में नहीं होने चाहिए, वो फिजिकली बिल्कुल फिट होने चाहिए। और लास्ट है केयरिंग। Empathy puts you on the same side of the table as the prospect. यानी एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का क्या मतलब है कि आप अपने आप को कस्टमर की जगह रखकर देखें, क्या उनके कंसर्न ठीक है, और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। सो यू शुड बी हैविंग अ केयरिंग नेचर और यू शुड हैव एम्पैथी टुवर्ड्स योर कस्टमर्स। इस स्लाइड में से कोई क्वेश्चन है? पहले हम सारे ट्रेड्स कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस ट्रेड्स ऑफ अ गुड डील क्लोजर। अभी तक हमने इनर ट्रेड्स की बात की, क्वालिटीज की बात की, अब हम एक डील क्लोजर की बात कर रहे हैं। यानी डील क्लोजर कौन होता है? जो
एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके एक्शन करवा ले अपने कस्टमर से, वो डील क्लोजर होता है, यानी फाइनली डील हो गई। तो उसके क्या क्या ट्रेट्स हैं? इंटेलिजेंस बुक स्मार्ट्स, द स्मार्ट टेक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, आस्क व्हाट their greatest educational achievement was and why। यानी पहले तो बुक वाली उनकी इंटेलिजेंस देखनी जरूरी है कि उनके पास कितनी डिग्री है, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होगा उतना ज्यादा ये कहलाता है कि दे आर अ गुड डील क्लोजर। तो पहले हम उनकी बुक स्मार्टनेस देखेंगे, फिर उनकी इंटेलिजेंस देखेंगे स्ट्रीट स्मार्ट्स पर, कौन से लोग फील्ड पे उतर के ज्यादा अच्छा काम करते हैं। कुछ कभी कभी क्या होता है कि लोगों के पास डिग्री अच्छी होती है लेकिन वो फील्ड पे इतना अच्छा काम नहीं करते, या वाइस वर्सा, डिग्री इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं फील्ड पे। तो मेक श्योर दे हैव द कॉमन सेंस, सिर्फ बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला, दे शुड हैव द कॉमन सेंस। You don't want pushovers, tell them an obviously fabricated story and see if they pick up on it. Play it off if they do, run if they don't। यानी उनको एक स्टोरी सुनाकर देखिए आप, जो बिल्कुल ही मनगढ़ंत है, यानी आपकी बनाई हुई स्टोरी है, और फिर देखिए कि वो उसमें से कैसे पिक कर पाते हैं क्या कि आपने क्या सच बोला है और क्या झूठ बोला है। अगर वो उनके कॉमन सेंस अच्छी है तो वो जल्दी से पिक कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो दे शुड नॉट बी योर सेल्स पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस। आर दे एबल टू टेक द मेजर ऑफ पर्सन? रीड अ रूम, ask them a question about the person who walked them back to your office। If you are a remote company, ask them the person at your company they first spoke on the phone or via video। Did they pay attention and can they answer? यानी उनमें कितनी अवेयरनेस है आपकी कंपनी को लेकर, और इसको जांचने का क्या तरीका है, उनसे बात करो। सपोज अभी कोई रूम में आया था, आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो, तो पूछो कि क्या आपने ये देखा कि कौन आया था रूम में, या फिर अगर उनकी फोन पर बात हुई थी या वीडियो कॉल हुई थी तो उनको कहो कि क्या आपको नाम याद है कि किससे बात हुई थी। यानी वो कितने अटेंटिव हैं, कितनी अवेयरनेस है उनमें। ये भी एक डील क्लोजर की बहुत अच्छी निशानी होती है कि आप कितना जल्दी ऑब्जर्व करते हैं कि आपके कस्टमर्स आपको क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट, इंक्यूजिटिव। Inquisitive salespeople uncover needs and pain points. Do they ask more than just cursory questions and about the position? See if they ask about your career track with the firm। यानी आपको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि सेल्स पर्सन सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो आप पूछ रहे हैं या कस्टमर पूछ रहा है। एक सेल्स पर्सन की ये भी ट्रेट होता है कि कुछ हिडन चीज़ों को भी खोलकर अपने कस्टमर के आगे रख दे। सपोज मुझे कोई डील करनी है क्लोज, तो मैं आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से बताऊं ताकि कल को आप ये ना कह सके कि हमें तो ये बताया ही नहीं था। तो अ पर्सन शुड बी इंक्यूजिटिव, यानी अपनी तरफ से कुछ नीड्स और पेन पॉइंट्स को खुद इलैबोरेट करे ताकि बाद में आगे चलकर किसी भी कस्टमर को कोई डिससेटिस्फैक्शन ना हो। यहाँ पे हमने कुछ और ट्रेट्स लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड। दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब यहाँ पर घर की ऑर्गेनाइजेशन से तो है नहीं, यानी आपको अपनी प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। यानी
सपोज मुझे पहले आपको क्या बताना है, उसके बाद क्या बताना है प्रोडक्ट के बारे में, फिर क्या बताना है, लास्ट में प्राइस बताना है, सबसे पहले प्राइस बताना है, पहले फीचर्स बताने हैं, पहले साइड इफेक्ट्स बताने हैं। आई शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनफ कि इस सिस्टम से मुझे अपने कस्टमर्स को हैंडल करना है। 21st ट्रेट है एनालिटिकल, very helpful for complex sales. Question them about a challenging sale you worked on. Do they ask for more info or more data to help determine an answer? Not only does this shed light on their problem solving skills, but it also tests to see if they have good listening skills. How well did they understand your previous challenging sales story? यानी पहले उनको कुछ ऐसी स्टोरीज बताओ, जैसे मैं टॉप मैनेजमेंट हूँ, आप सब सेल्स पर्सन हैं, अब मैं आपकी एनालिटिकल सेल्स स्किल्स को चेक कर रही हूँ। तो मैंने 10 लोगों को बिठाया और अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने वहाँ पे मैं सेल करने गई थी, लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला या इस तरीके से लोगों ने प्रोडक्ट खरीदे नहीं। तो अपनी स्टोरी मैं शेयर करूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी कि आप में से कितने लोग अच्छे से सुन रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे सजेशन दे रहे हैं। आप में से कुछ कहेंगे कि मैम आपको ये करना चाहिए था, ये हो सकता है। इससे मुझे आपके एनालिटिकल स्किल्स के बारे में पता चलेगा कि अंडर प्रेशर आप कैसे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेट है लर्नर का। लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। सपोज एक दिन आप सेल्स करने गए, आपके लिए किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो अगले दिन फ्रस्ट्रेट होके आप बैठ गए, आपने कहा मैं उस टेरिटरी में नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब यू आर नॉट अ गुड लर्नर। आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक बार हारने के बाद कैसे दोबारा उसी टेरिटरी में जाकर आप जीत सकते हैं। तो you have to learn from your experience and from your subordinates experience या peer group experience कि बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, उससे सीखकर आप नेक्स्ट सर्वे के लिए निकलेंगे। नेक्स्ट है सोशल IRL। Do they like people and are they known outside of their circle? What do they do in their community? Good relationships IRL often translate to the strong customer relationship at work. IRL का मतलब है interpersonal relation linkages, यानी आपकी बाकी कम्युनिटी के लोगों के साथ कैसी जान पहचान है। अब आपने देखा होगा कुछ सेल्स पर्सन होते हैं, वो आसपास के लोग सब जानते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो लोगों से अच्छे से बात करते हैं। तो जब वो कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो हम उनसे लेना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी गुडविल अच्छी है, सोशल IRL अच्छी है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई पसंद नहीं करता, बहुत ड्रिंक करता है, कुछ इस तरीके का टाइप का कोई भी बंदा है, तो हम उससे चीज़ें लेना पसंद नहीं करेंगे जो कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता। तो इसीलिए it's very important to have your social IRL, social goodwill, ताकि लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बनाकर आप प्रोडक्ट्स को बेच सके। आपने देखा होगा LIC एजेंट्स थोड़े ऐसे होते हैं, बनाते हैं फिर प्रोडक्ट बेचते हैं। सोशल ऑनलाइन, आर दे गुड एट सोशल सेलिंग? आस्क व्हाट प्लेटफॉर्म्स आर दे ऑन? हाउ ऑफन डू दे पोस्ट एंड एंगेज विद द फॉलोअर्स एंड कनेक्शन? यानी आज के ज़माने में सोशल ऑनलाइन होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी सोशल मीडिया पे अपना सर्कल होना ज़रूरी है। तो आप ये देखेंगे कि सेल्स पर्सन जो है आपका, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, वो कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर बन सकता है। और लास्ट है ऑप्टिमिज्म, यानी
एक सेल्स पर्सन को ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी सेल ये होगी ही होगी। सपोज मैं किसी घर पर गई, उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, छोड़कर मैं दूसरे घर पर चली गई, तो अगर मैं उनको परसुएट करती तो हो सकता है कि वहाँ पर सेल हो जाती, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं रही, इसीलिए मैंने सेल नहीं की। तो it is really important for your sales people to be optimistic. तो हमने 25 ट्रेड्स किए हैं। अब इनमें से पॉइंट 1 2 मत लिखना, पॉइंट का नाम लिखना कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, एंड देन आई विल एक्सप्लेन। जब तक मैं ये पीपीटी अपलोड कर देती हूँ सेम लिंक पर। कुछ बच्चों का कल भी मैसेज आया था कि अगर पहले आपको मिल जाती है पीपीटी तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं ये अपलोड कर देती हूँ। शायद ये पर्सनल सेलिंग की मैंने अपलोड कर दी है। जो कल वाला लिंक था उस पर जाकर देखो, मैंने ये पर्सनल सेलिंग की पीपीटी कल ही अपलोड कर दी थी। जब तक रेज योर क्वेरीज। यस, ये पीपीटी अपलोडेड है, आप कल वाले लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब आपके कुछ क्वेश्चन आए हैं। एनालिटिकल, एनालिटिकल का मतलब है कि सामने वाले की एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, यानी वो सिचुएशन को समझकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकता है। अब इसको जानने के लिए आप कोई रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं कि जिसमें मैंने आपको कोई सिचुएशन दे दी और पूछ लिया कि आप इस सिचुएशन में कैसे डील करेंगे, या फिर मैं अपनी तरफ से आपको कोई स्टोरी सुना सकती हूँ और फिर पूछूंगी कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। इससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स पता चलती हैं और किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की पावर पता चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल आईआरएल। सोशल आईआरएल का मतलब है कि अगर कोई बंदा नॉर्मली किसी सोसाइटी में अच्छा माना जाता है और उसके बहुत सारे लिंकेजेस हैं, तो वो बंदा एक ज़्यादा अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता है रादर देन अ पर्सन हु इज नॉट नोन टू अदर्स। IRL की फुल फॉर्म है यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लिंकेजेस, या फिर आप इनको इसको सिंपलर फॉर्म में सोशल इन रियल लाइफ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने सोशल ऑनलाइन भी पढ़ लिया और सोशल इन रियल लाइफ भी पढ़ लिया। जो लोगों के साथ मिलजुल कर कम्युनिटी का पार्ट रहता है वो सोशल आईआरएल कहलाता है। जो बंदा ऑनलाइन बहुत लोगों के संपर्क में रहता है, किसी के 5000 फ्रेंड्स हैं, किसी के लैक्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो वो सोशल ऑनलाइन प्रेजेंस में भी अच्छा कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं ताकि लोगों को आसानी से सामान बेचा जा सके। हम्बल का मतलब है कि आप में ईगो नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाले ने आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया या आपको भेज दिया तो आपको अपना ईगो नहीं दिखाना है, आपको उनसे पोलाइटली ही बात करनी है। आपने देखा होगा सेल्स पर्सन वो बहुत पोलाइट होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है कि आपको हमेशा ये सोचना है कि ये सेल तो होगी ही होगी। आपको ये नहीं सोचना कि भाई अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो ये आपसे खरीदेगा ही नहीं। आपको ये सोच के चलना है कि कोई नहीं, ये इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे समझाऊंगा तो ये इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो आपको ऑप्टिमिज्म रखना है
उसकी सेल्स होगी ही होगी। केयरिंग का मतलब है आप में एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब है कि आप खुद को उसकी जगह रख कर देखिए कि किसी कस्टमर के क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं रिलेटेड टू प्राइस, रिलेटेड टू क्वालिटी, और फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। You should care about their feelings as well. Driven का मतलब है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको ड्राइव करती है काम करने के प्रति। वो आपकी सैलरी हो सकती है, आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई भी ऐसी एक चीज हो सकती है। तो आप ड्रिवन होने चाहिए, यानी खुद काम करने के लिए इच्छुक होने चाहिए। क्लटर्ड वर्क स्पेस का मतलब है जहाँ पे कोई काम अच्छे तरीके से ना हो। कभी कोई काम कर दिया, कभी कोई प्रोसेस कर दिया, जो बाद में करने वाली चीज थी वो पहले कर दी, जो पहले करने वाली थी वो बाद में। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि पहले आपको प्राइस की बात करनी है या नहीं। सपोज मैंने शॉप में किसी प्रोडक्ट को बेचने आई हूँ, वो बहुत महंगा है, और मैं आते ही आपको प्राइस बता दूं तो आप आगे की कोई चीज मुझसे सुनोगे ही नहीं। इसलिए आई शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड कि पहले मुझे फीचर्स बताने, लास्ट में प्राइस की बात करनी है। अगर वो महंगा है, अगर वो सस्ता है तो सबसे पहले प्राइस बताओ ताकि लोग अट्रैक्ट हों, फिर उसके बाद उसके फीचर्स बताओ। तो दैट इज हाउ यू नीड टू ऑर्गेनाइज द होल प्रेजेंटेशन। स्ट्रीट स्मार्ट यानी जो फील्ड पे स्मार्टली बिहेव कर सके। सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। सपोज आपके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज है लेकिन आपको बिहेव करना ही नहीं आता, तो दोनों ट्रेड्स होने जरूरी हैं। डिग्री होना भी जरूरी है लेकिन उसके साथ में स्ट्रीट स्मार्टनेस भी होनी चाहिए, यानी फील्ड स्मार्टनेस। डिस्ट्रैक्शंस यानी कोई बंदा आपके घर सेल करने आया है, अब वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है आपकी बातों से, या सपोज आपके घर में बच्चे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, उसका ध्यान भटक रहा है, तो वो सेल नहीं कर सकता। ही शुड बी फोकस्ड ऑन हिज वर्क। आसपास के लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान ना देकर उसको काम पर ध्यान देना चाहिए, जब भी वो वेल ऑर्गेनाइज्ड कहलाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मॉडल आप सबको आता है, एडा मॉडल लिखा है, लेकिन सेलिंग में हम इसमें एक एस और लगा देते हैं, एडाज मॉडल, एंड एस स्टैंड्स फॉर सेटिस्फैक्शन। तो बाकी के एलिमेंट सारे सेम है, लेकिन इसमें सेटिस्फैक्शन एक एलिमेंट को हमने इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में आप एक्शन के बाद सेटिस्फैक्शन भी देखते हैं कि आपके कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई है प्रोडक्ट से या नहीं है। EDA stands for attention, interest, desire, action, and satisfaction. Attention, the consumer becomes aware of the category of the product or brand. तो यानी यूजुअली अगर कोई प्रोडक्ट बेचने आया है तो इस स्लाइड से यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। गेनिंग अटेंशन इज अ स्किल, यानी सबसे पहले
कोई भी सेल्स पर्सन आपको कोई प्रोडक्ट बेचने आया है तो वो आपकी अटेंशन ग्रैब करेगा, यानी आपको पहले तो बताएगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, सर्फ है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, वॉशिंग मशीन है, क्या बेच रहा है पहला, दूसरा कौन से ब्रांड का है। तो यानी ही इज सीकिंग योर अटेंशन। गेनिंग अटेंशन इज अ स्किल which can be developed in practice just like any other skill. The phrase first impression is the last impression is applicable here. यानी शुरू में ही जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है सेल्स पर्सन का और प्रोडक्ट का, वो हमेशा लास्ट तक रहता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्स पर्सन टू मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन. The salesperson's initial attempt should be to make the customer completely happy. Casual discussion is one of the best openers for the seller to gain the customer attention. यानी सबसे पहले वो नॉर्मली बात करता है ताकि आपकी अटेंशन ले सके। सीधा प्रोडक्ट पे आ जाएगा तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है, तो वो पहले कैजुअल डिस्कशन करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, आपको किस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप थोड़े इधर उधर की बातें करते हैं ताकि आपकी अटेंशन ग्रैब कर सके. The aim here is to put the prospect in the right frame of mind to continue the sales talk. उसके बाद धीरे धीरे आपको सेल्स तक ले जाते हैं. In order to participate in the face-to-face interview, the seller needs to convince the prospective customer. यानी face-to-face interview में convince करना बहुत ज़रूरी होता है customer को. A good start to discussion can provide the stage for a full sales presentation. In order to make the prospective customers aware of their sales presentation, a seller must apply his social and physiological psychological skills. यानी जब भी कोई सेल्स प्रेजेंटेशन होती है तो आपको एक अच्छा स्टार्ट करना होता है. शुरू में ही आपको ईगो नहीं दिखाना है, शुरू में ही आपको ब्लंट नहीं होना है, बहुत पोलाइटली आपको अटेंशन ग्रैब करनी है ताकि आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सके, नहीं तो वो फर्स्ट स्टेप से ही आपको बाहर भेज देगा. तो यू हैव टू सीक द अटेंशन एंड यू मस्ट अप्लाई योर सोशल एंड साइकोलॉजिकल स्किल्स. यानी पहले सामने वाले की साइकोलॉजी समझो, उसको किस तरीके से बोलना पसंद है. सपोज हमारे पेरेंट्स है घर पे, तो वो उनको आके नमस्ते करेंगे, नमस्ते आंटी अंकल दिस एंड दैट, उसके बाद वो समझाएंगे कोई चीज़. तो सामने वाले की साइकोलॉजी समझ के उस तरीके से बिहेव करना बहुत ज़रूरी है. फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रिएटिंग. द सेकेंड स्टेप इज टू इंक्रीज द अटेंशन ऑफ द prospects to have a strong interest. तो ये उसी की तरीके से है जैसा हमने एडवर्टाइजिंग में एडा मॉडल पढ़ा था कि आपको पहले तो अवेयरनेस फैलानी है, फिर इंटरेस्टेड करना है उनको, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट क्रिएट करना है. इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको अलग अलग फीचर्स बताने हैं, अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन का आंसर देना है, और साथ ही में उनको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ मेन पॉइंट्स बताने हैं अपने प्रोडक्ट के, जिससे वो अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना सकें आपके प्रोडक्ट के लिए और आगे जानने के लिए इच्छुक हों कि इसमें और क्या है. तो एक बार ये स्लाइड खुद पढ़ लो, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें. जैसे हमने एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट क्रिएट किया था वैसे ही यहाँ पर करना है, बट वो पर्सनल सेलिंग के थ्रू हो रहा है, यानी आप फेस टू फेस बात करके कर रहे हैं.
नेक्स्ट है डिजायर। डिजायर भी हमने एडा मॉडल में पढ़ा है एडवर्टाइजिंग में। डिजायर का मतलब है जब आपके अंदर ये इच्छा जागृत हो जाए कि आपको वो प्रोडक्ट खरीदना ही है। तो ये स्टेज सबसे बेस्ट स्टेज होती है, क्योंकि अब आप कस्टमर को कन्विंस कर चुके हैं प्रोडक्ट के लिए। बस अब सारी बात आके प्राइस पे अटक जाती है। प्रोडक्ट पसंद आ चुका है, तो डिजायर तक पहुंचने के लिए क्या करना है, इस स्लाइड में लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट एक्शन। एक्शन हमने पढ़ा था एडवर्टाइजिंग में कि जब फाइनली आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर रेडी हो जाए तो उसको एक्शन पार्ट कहते हैं। यहाँ पर एक्शन पार्ट अगेन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब हम एडवर्टाइजिंग में देखते हैं तो लोग एड देख के फिर बाद में जब उनकी मर्जी होती है जब खरीदते हैं। लेकिन पर्सनल सेलिंग में सेल्स पर्सन असिस्ट करता है एक्शन पार्ट में भी, कि कैसे खरीदना है, कैसे पेमेंट करनी है, क्या डिस्काउंट है। तो एक बार ये स्लाइड भी पढ़ लीजिए।
अब देखिए इसमें लिखा है कि कई बार इंसान, कोई भी कस्टमर जो है, वो डिज़ायर होती है उस प्रोडक्ट को खरीदने की, लेकिन वो एक्शन तक नहीं जा पाता, यानी उसको खरीद नहीं पाता या खरीदने तक नहीं पहुंच पाता। चाहता है लेकिन खरीदता नहीं है। तो यहाँ पर सेलर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि सेलर उसको रीअश्योर करता है कि आपको ये खरीदना चाहिए। ये क्यों खरीदना चाहिए आपको? हम आपको, चलो थोड़ा, अगर आपको ये लग रहा है कि ये कस्टमर प्राइस की वजह से कर रहा है, खरीदना तो चाहता है, पसंद आ रहा है, लेकिन प्राइस की वजह, तो थोड़ा डिस्काउंट दे दो, या थोड़ा और फायदे बता दो, या बता दो कि ये इस सेलिब्रिटी ने यूज़ किया, या आजकल इतने लोग यूज़ कर रहे हैं इसे, इसका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो ये सारे काम जो है ये भी एक सेल्समैन को करने होते हैं, ताकि उनकी जो इच्छा है उसको एक्शन पार्ट तक पहुंचाया जा सके। और लास्ट स्टेज है सेटिस्फैक्शन, जो एडा थियरी में नहीं थी लेकिन एडाज थियरी ऑफ सेलिंग में है। दिस इज द फिफ्थ स्टेप। द कस्टमर शुड फील दैट द सेलर हैज merely helped him in making the right decision। यानी कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए इसने ज़बरदस्ती मुझे ये प्रोडक्ट दे दिया। उसको ये लगना चाहिए कि उसने, जो सेल्समैन है, उसने तो मुझे फैसिलिटेट किया है ताकि मैं अपनी इच्छा के प्रोडक्ट को खरीद सकूं, और मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो सही डिसीजन लिया है। इससे पता चलता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड है। The salesperson will ensure that the product is delivered to the consumer after the sales are made। सेल्स पर्सन को कभी कभी तो उनके पास प्रोडक्ट होता है वो साथ में, तो वो साथ में दे देते हैं, कभी कभी वो बाद में डिलीवर किया जाता है। तो सेल्स पर्सन को ही हैज टू मेक इट श्योर कि जो भी वो प्रोडक्ट है वो अच्छे से डिलीवर कर दिया जाए। द सेल्समैन कैन फील द अपॉर्चुनिटी एंड ब्रिंग्स बैक the sales are made, brings back his stocks। यानी अब जब प्रोडक्ट बिक गया है उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल्समैन कहे कि चलो ठीक है हो गया, नाउ आई एम गोइंग। नहीं, उसके बाद भी उसको अपनी बातचीत जारी रखनी चाहिए ताकि कस्टमर और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस कर सके। Customers always expect good service and good products. Thus, you must reassure your customer that he took the right decision even after he purchased the product। यानी जब परचेज कर लिया है, प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, उसके बाद भी आपको अपने कस्टमर को बार बार कन्विंस करना है कि आपने सही फैसला लिया है। द प्रोडक्ट इज यूजफुल फॉर द कस्टमर, ही इज राइट एंड दैट इज हिज डिसीजन। यानी उसको बार बार ये बताओ कि आपने जो डिसीजन लिया है वो ठीक है, प्रोडक्ट जो है बहुत यूजफुल है, आपको अच्छा लगेगा यूज करके, और आपका डिसीजन और आप बिल्कुल सही हैं। Since the customer is the king, we have to satisfy them in his queries and provide good after sales services। यानी सेटिस्फैक्शन के लिए आपको अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी है, जैसे इंस्टॉलेशन की सर्विस देते हैं कुछ लोग। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बेच दिया, अब तो बिक गया, तो मेरी क्या सिरदर्दी है, करवा लेंगे इंस्टॉल? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कस्टमर जब भी सेटिस्फाई होगा जब आप उसको अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज भी देंगे। कोई प्रॉब्लम आ गई तो जब के जब ठीक करेंगे, इंस्टॉलेशन करवाएंगे फ्री में। तो ये सारी आफ्टर सेल सर्विसेज भी ज़रूरी है, जस्ट टू कीप योर कस्टमर सेटिस्फाइड। सो ये 5 स्टेप आते हैं एडाज थ्योरी में। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। वो मॉप का तो एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई टूल दे रहे हैं या मॉप पोछा होता है, उस तरीके का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो।
यानी अगर कोई आप टूल या कोई मॉप बेच रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई सामान बेच रहे हैं, तो आपको इस तरीके से बेनिफिट बताने हैं ताकि लोग मन ही मन में सोचें कि ये हमने पहले क्यों नहीं खरीदा। ये लिखा है डिजायर में कि डिजायर कैसे क्रिएट करनी है। इंटरेस्ट और डिजायर में दोनों में इंटीग्रल पार्ट क्या है, एक क्वेरी ये आई है। तो इंटरेस्ट में आप सिर्फ उसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेना चाह रहे हैं, और डिजायर तक पहुंचने में, जब आप डिजायर पे पहुंचते हैं तो जब आप अपने माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बना चुके होते हैं कि यस आई वांट दिस प्रोडक्ट। तो इंटरेस्ट में क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, एंड डिजायर में होता है कि यस आई वांट दिस प्रोडक्ट। half part of satisfaction। अब फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया है सेटिस्फैक्शन में, वो बताओ, मैं बताऊंगी दोबारा। शिवानी, कौन सा हाफ पार्ट सेटिस्फेक्शन का पूछ रहे हो? सेकेंड हाफ। सेटिस्फेक्शन में आपको ये अश्योरेंस लेना होता है कि एक्शन के बाद, यानी प्रोडक्ट तो खरीद लिया, ऑन पेपर्स तो आपका काम सफल हो गया, लेकिन अभी भी आपको ये एश्योरेंस चाहिए कि आपका कस्टमर सेल से सेटिस्फाई है या नहीं। क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो 10 लोगों को जाकर कहेगा कि ये तो मुझे खरीदना नहीं था, ज़बरदस्ती चेप दिया एंड दिस एंड दैट। तो आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है कि जो आपने परचेजेस की है वो आपका राइट डिसीजन था, आपने बिल्कुल सही किया ये लेके। आपके अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि मैंने क्यों लिया। तो उस चीज में भी सेल्समैन का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि खरीदने के बाद भी वो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है सप्लीमेंट्री एविडेंस से। यानी वो बताएगा कि साथ वाले लोगों ने भी ये लिया था, बहुत अच्छा चल रहा है, वो तो बहुत खुश हैं इससे, उन्होंने तो दूसरी परचेजेस भी की है, उन्होंने तो अपने रिश्तेदारों को भी कहा है ये खरीदने को। इससे सेटिस्फेक्शन बढ़ता है कि हाँ मैंने जो प्रोडक्ट लिया है वो ठीक लिया है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक्शन है जब आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं एक्चुअली। तो एक्शन में आपको कुछ चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि आपको पता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट खरीदने में, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं ले रहा है, प्राइस हाई लग रहा है। तो फिर एक्शन पार्ट में सेल्समैन का क्या काम होता है कि उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट बताए,
या फिर और एडिशनल फीचर्स बताए प्रोडक्ट के, ताकि उसको ये लगे कि ये ज़्यादा महंगा नहीं है। तो सामने वाले की स्थिति को जानकर कि सामने वाला चाह तो रहा है प्रोडक्ट खरीदना, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो उसको रोक रही है खरीदने से, उसको जानकर वो सॉल्व करना सेल्समैन का काम होता है। तो वो एक्शन पार्ट में आता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक्शन। पीपीटी शो नहीं हो रही है क्योंकि मैं आपकी वाली स्क्रीन पर हूँ ना, क्वेश्चन ले रही हूँ, इसीलिए शो नहीं हो रही है। और कोई क्वेश्चन है? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग, जिसको हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बिकॉज आई ऑल्सो हैव माई क्लास फ्रॉम 3 to 4, तो इसीलिए आज की क्लास में आपकी जल्दी खत्म कर रही हूँ। अब एक दो टॉपिक रह गए हैं जो हम नेक्स्ट, अब आपकी दो क्लासेस रह गई हैं, आई थिंक एक 3rd अप्रैल को है, एक 5th अप्रैल को है। सो वी विल बी एबल टू कंप्लीट आवर सिलेबस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई और क्वेरी है तो अभी बता सकते हो, यू हैव 10 मिनट्स। पीपीटी अपलोड करी जा चुकी है, कल आपको पीपीटी अपलोड कर दी थी मैंने। हाँ, अगर लिंक दोबारा देना है तो मैं लिंक दोबारा दे देती हूँ आज। शुभम की एक क्वेरी आ रही है कि एडाज इन सेल्समैनशिप वर्सेस एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में हमने सिर्फ एडा मॉडल पढ़ा है जो एक्शन पे खत्म हो जाता है, लेकिन सेल्समैनशिप में सेटिस्फैक्शन पर भी ध्यान दिया जाता है। मेरी फर्स्ट पीपीटी है, उसमें देख सकते हैं आप। What is CRM? CRM is Customer Relationship Management. तो आपको सिर्फ सेल नहीं करनी है, लेकिन कस्टमर से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी मेंटेन करना है, ताकि बार बार वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे। एसर्टिव होने का मतलब है कि आप अपने पॉइंट पर खड़े रहे। तो यानी अगर सामने से कोई कुछ कह रहा है कि भाई ऐसा होता है, तो उसकी सारी हाँ में हाँ नहीं करनी है, आपको अपने पॉइंट्स भी रखने हैं। लिंक मैंने आपको दे दिया है, पब्लिश कर दिया है। इस पे आज तक की सारी पीपीटीज हैं, इवन जो नेक्स्ट क्लास में होगा वो भी है। चलिए आज के लिए इतना ही। See you in the next class on 3rd of April. Bye bye, take care. विकास जी, मेरी आवाज आ रही है? विकास जी, am I audible?
एग्जाम आपके ऑफलाइन होंगे। इंक्यूजिटिव मतलब कि सिर्फ जो सामने से क्वेरी आ रही है उसी को रिजॉल्व नहीं करना, अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स जो कंसर्न रेज कर सकते हैं इन फ्यूचर वो भी आपको क्लियर करने हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर में मैं कुछ नहीं कर सकती, वो सब एसओएल की टेक्निकल टीम ही देखती है। जब वो फिल्टर आउट करते हैं, एडिटिंग करते हैं लेक्चर्स की, उसके बाद ही अपलोड होते हैं। तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। आप अपने डैशबोर्ड पर चेक करते रहिए, जब अवेलेबल होंगी ये क्लासेस आ जाएंगी।